Hello students, how are you? Welcome back to the English class. Today I am going to continue the explanation of the lesson Events Tries an O Level by Colin Dexter. To refresh your mind, let me first tell you at around 8:45 am, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat. It was very cold that morning. The McLeary was wearing a black overcoat and a shallow crowned hat, which gave him protection from the steady drizzle. He was carrying a small suitcase which contained some necessary things for carrying out his duty as an invigilator. They included a question paper envelope, uh, yellow a yellow invigilation form, an authentication card from the examination board, a Bible, a copy of church times, and a paper knife. The examination was scheduled to start at 9:15 am. Stephens, the prison officer, brought two chairs and two tables in Evans's cell. Jackson gave his final appearance. He asked Evans not to make any problem or to behave properly. He instructed him to take up the peanuts. Evans asked him about the audio device which was fitted above the door of the cell. Jackson conceded that it was not fixed properly. Upon which Evans commented that the prison authorities were not going to take him seriously, or they did not think that Evans was going to escape from the prison. Upon which Jackson told him that no one was going to take any chances with Evans. He also informed Evans that the audio was going to be listened by the governor himself, and he was going to keep a close watch on him like a hawk. In the meantime, Stuart McLeary had already arrived in the prison. He was escorted by a silent prison officer to D wing, where he handed him to Jackson. Jackson escorted him, and they passed two heavily guarded gates. The gates were opened and locked, and then he was given in the keeping of Stephens. Jackson instructed Stephens to take the razor away from Evans, and then they reached the Evans's cell, and there was a peephole. Through the peephole, Stephens showed McLeary Evans. At that time, Evans' eyes were fixed at a textbook of elementary German grammar. Okay. Now we'll start from page number 76 from the top. It was 9:10 am when the governor switched on the receiver. तो सुबह के 9:10 हुए थे जब गवर्नर साहब ने रिसीवर ऑन किया. आपको याद होगा कि एवेंस के सेल में एक ऑडियो डिवाइस फिट है और उसका जो रिसीवर है, तो एवेंस के सेल में एक्चुअली माइक्रोफोन फिट है. ठीक है, ये जो ऑडियो सिस्टम है इसका माइक्रोफोन एवेंस के सेल में फिट है और इसका जो रिसीवर है वो गवर्नर की ऑफिस से फिट है. जो कुछ भी एवेंस के सेल में होगा, मतलब जो भी आवाज़ें होंगी वो गवर्नर साहब अपने सेल में सुन सकते हैं. तो 9:10 am पर गवर्नर साहब ने उस ऑडियो डिवाइस का रिसीवर जो है वो ऑन किया. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution that was only fair. गवर्नर साहब ने जैक्सन को बता दिया था
इस टेम्प्ररी लिटिल प्रिकॉशन के बारे में जो कि फेयर था। अच्छा, ये क्या चीज़ है टेम्प्ररी लिटिल प्रिकॉशन? यही चीज़ है जो उसके सेल में जो ऑडियो डिवाइस फिट किया गया था उसी के बारे में जो है गवर्नर साहब ने जैक्सन को कहा था कि वो एवेंस को बता दें। एज इफ एवेंस वुडेंट स्पॉट इट, तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि एवेंस इसको स्पॉट नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे सेल में उसके क्या लगा हुआ है ना। बट वॉजेंट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल, स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट। तो गवर्नर साहब फिर अपने मन में सोच रहे हैं कि क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये थिएट्रिकल नहीं है। थिएट्रिकल का मतलब होता है ये नाटकीय या कोई ड्रामा नहीं है बिल्कुल। स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट, जैसे कि स्कूल में बच्चे करते हैं उस तरह से नहीं है ये। हाउ ऑन अर्थ वॉज एवेंस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे। वो गवर्नर साहब सोच रहे हैं कि आज के दिन जो है एवेंस क्या कुछ ट्राई कर सकता है, कैसे ट्राई कर सकता है। इफ़ ही वॉज सो एंक्शस टू मेक अनदर ब्रेक, अगर एवेंस दूसरा ब्रेक करना चाहता, तो इससे पहले कई बार वो ब्रेक करके प्रिजन बाहर भाग चुका है, तो गवर्नर साहब सोच रहे हैं कि क्या अगर एवेंस को आज एक और ब्रेक करना होता, अगर वो ईगर होता या एंक्शस होता, वाई इन हेवेंस नेम हैडंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, तो उसने रिक्रिएशनल ब्लॉक में ऐसा क्यों नहीं किया। मच ईजियर बट ही हैडंट, रिक्रिएशनल ब्लॉक में और आसान एस्केप करना और आसान था, बट ही हैडंट, लेकिन वहाँ पर उसने एस्केप नहीं किया। एंड देयर ही वॉज नाउ, बट देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन द लॉक्ड सेल, ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन अलर्ट। ओके, और अब जो है वो एक लॉक्ड सेल के अंदर बैठा हुआ, ठीक है। पहले रिक्रिएशनल ब्लॉक में था जहाँ पर एस्केप करना आसान था, लेकिन वहाँ पर उसने ट्राई नहीं किया था, और अब वो एक सेल के अंदर था और वो लॉक्ड सेल था। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन अलर्ट टू मोर लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड। अब वो एक सेल के अंदर बैठा हुआ था और दो प्रिजन ऑफिसर्स जो है वो अलर्ट पे थे, उसकी रखवाली कर रहे थे, और जो है टू मोर लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, तो प्रिजन का जो यार्ड है उसके और एवेंस के सेल के बीच में दो लॉक्ड डोर्स हैं। आपको याद होगा जब मैकलेरी साहब आए थे तो जो है बीच में दो डोर आए थे, दोनों को खोला गया और लॉक किया गया। उसके बाद एवेंस का सेल आया। इसका मतलब जो है प्रिजन यार्ड और एवेंस के सेल के बीच में दो लॉक्ड डोर थे, और एंड अ यार्ड विद अ वॉल एज हाई एज द हैशटैग, और प्रिजन का जो यार्ड था, जो ओपन या एरिया था, उसके जो दीवारें हैं वो इतनी ऊंची थी जैसे कि हैशटैग। हैशटैग मीन्स अ लार्ज पाइल ऑफ है, भूसे का एक बहुत बड़ा ढेर को हैशटैग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि the walls of the prison were very high. Evans was as safe as houses. As safe as houses means Evans was very safe there. ठीक है, तो इतने सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए गए थे ताकि एवेंस की एस्केप को रोका जा सके, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें थी, एवेंस को उस एक सेल में रखा गया था, एवेंस वाज पुट इन अ सेल, and there were two locked doors between Evans's cell and the yard, and two prison officers were keeping a close watch on him, and the wall of the prison were very high. Evans was safe. Evans was very safe there. Okay. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. तो उन्होंने गवर्नर साहब ने सोचा कि जो रिसीवर है इसको 2 घंटे के लिए ऑन रखना ये कोई बहुत ट्रबल की बात नहीं होगी, इसमें कोई बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर ये रिसीवर 2 घंटे के लिए एग्ज़ाम चलेगा, 2 घंटे के लिए ऑन रखना कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है।
It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? तो गवर्नर साहब सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात होगी जिसको सुना जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं वहाँ पे कि जिसको कुछ सुनने की ज़रूरत होगी। Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. तो गवर्नर साहब सोच रहे हैं कि वहाँ पर एक इन्विजिलेटर है, और इन्विजिलेटर की एक जो ड्यूटीज़ हैं उसमें से एक ड्यूटी ये भी है टू इंश्योर दैट स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व्ड। इन्विजिलेटर की ड्यूटी ये होती है कि स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस ऑब्जर्व करवाना उसकी ड्यूटी होती है। इसका मतलब कि एग्जामिनेशन के दौरान जो है कोई ऐसी बातचीत नहीं होने वाली है जिसको सुना जा सके। बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट। लेकिन गवर्नर साहब के दिमाग में फिर एक बात आ रही है, कह रहे हैं लेकिन वो एक डाउट है। नैगिंग डाउट मीन्स ट्रबलिंग डाउट, जो दिमाग को ट्रबल करते हैं। वो क्या है? माइट एवेंस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी। तो गवर्नर साहब के दिमाग में अचानक एक बात आती है, वो ये आती है कि क्या एवेंस जो है वो मैक्लेरी साहब का एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। गेट हिम टू स्मगल इन अ चिज़ल और टू और अ रोप लैडर, और गेट हिम टू स्मगल। स्मगल मीन्स ब्रिंग इन समथिंग इलीगली, ठीक है, सीक्रेटली। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो मैक्लेरी साहब से कोई चीज़ अंदर मंगवा ले, स्मगल करवा ले, जैसे कि चिज़ल हो गया। चिज़ल जो है एक मेटल थिंग होती है, लॉन्ग मेटल थिंग, और ये एक टूल होता है और शार्प होता है, एक वन साइड इज़ वेरी शार्प। और रोप लैडर, और या तो रोप लैडर मंगा ले, यानी भागने का कोई सामान मंगा सकता था वो मैक्लेरी साहब से। तो उनके दिमाग में ये बात आया। द गवर्नर सेट अप शार्पली। तो गवर्नर साहब जो है ना फिर अलर्ट हो गए, वो अपने चेयर पे जो है शार्पली या अलर्ट बैठ गए। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रीड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट एवेंस कुड हैव यूज्ड। तो पोटेंशियल वेपन मीन्स होता है कि पॉसिबल वेपन। तो गवर्नर साहब ने सोचा कि बहुत अच्छा होगा कि अगर एवेंस के पास ऐसा कोई पोटेंशियल वेपन हो जिसको वो यूज़ कर सकता हो, तो बेहतर होगा कि उससे ले लिया जाए। इट वुड बी बेटर टू गेट रीड ऑफ दैट। बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी? लेकिन मैक्लेरी साहब का क्या? What if, quite unwittingly, the innocent McLeary had brought in something himself? ठीक है। तो गवर्नर साहब ने सोचा कि हो सकता है कि मैक्लेरी साहब ने खुद ही अपने मन से कोई चीज़ अनविटिंगली ले आया हो, ठीक है, अनइंटेंशनली, या ठीक है कोई ऐसी चीज़ ले आए हों जिसको एवेंस यूज़ कर सके। कौन सी चीज़ ला सकते हैं वो? जैक नाइफ। एक नाइफ होता है जिसमें ब्लेड लगा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेड होता है, जैक नाइफ। परहैप्स हो सकता है कि वो पेपर काटने के लिए कोई जैक नाइफ ले आए। एंड व्हाट इफ एवेंस हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन। और हो सकता है कि एवेंस जो है उस वेपन से जो है उस मैक्लेरी साहब को हॉस्टेज बना ले। हॉस्टेज का मतलब होता है टू होल्ड अ पर्सन एज सिक्योरिटी इन एक्सचेंज फॉर समथिंग, एज द कंडीशन फॉर समथिंग। उनको पकड़ करके और उनके गले पे जो है वो ब्लेड रख सकता है और अपनी बात मनवा सकता है, ठीक है, तो उनको हॉस्टेज बना सकता है। तो ये बात गवर्नर साहब के दिमाग में अचानक आया। तो गवर्नर साहब जो है वो पहले सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि एवेंस जो है बहुत ही हेवीली गार्डेड सेल में है और काफ़ी सब कुछ सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं ताकि वो एस्केप ना कर सके। लेकिन उनके दिमाग में सडनली ये बात आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने मैक्लेरी साहब से
कोई सामान मंगा लिया हो बाहर से, या मैकलेरी साहब खुद ही अनइंटेंशनली अनविटिंगली कोई सामान ऐसा ले आए हों जिससे कि वैंस उनको हॉस्टेज बना सकता है और अपनी शर्त मनवा सकता है। द गवर्नर रीच फॉर द फोन। इट वॉज 9:12 AM। तो गवर्नर साहब ने इसीलिए फ़ोन उठाया और इस वक्त बजा था 9:12 AM। The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back। तो वहाँ पर जो है स्टीफेंस थे। स्टीफेंस जो है ना प्रिजन ऑफिसर, उसने एग्जामिनी यानी एवेंस को और इन्विजिलेटर यानी मैकलेरी साहब को उनका इंट्रोडक्शन वो करवा चुका था, और तभी जो है जैक्सन वहाँ पर आया। एंड शाउटेड टू मैकलेरी थ्रू द सेल डोर, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, यू टू स्टीफेंस। तो उसने स्टीफेंस को शाउट करके कहा कि क्या तुम बाहर आ सकते हो, और शाउटेड टू मैकलेरी। अच्छा, जैक्सन आया दौड़ते हुए, उसने मैकलेरी साहब को जो है चिल्ला के बुलाया थ्रू द सेल डोर। एवेंस के सेल का जो डोर था उसके थ्रू जो है उसने मैकलेरी साहब को चिल्ला के बुलाया और उनसे बाहर आने के लिए कहा, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट यू टू स्टीफेंस। और उसने स्टीफेंस को भी कहा कि तुम भी बाहर आ जाओ। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज। और जैक्सन ने गवर्नर साहब की वरीज को जो है क्विकली एक्सप्लेन किया। कौन सी वरीज थी? यही कि कहीं जो है मैकलेरी साहब जो है अपने साथ कुछ कोई वेपन न लेकर आ गए हों जिसको एवेंस यूज़ कर सकता हो। एंड मैकलेरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल वाइल्स्ट जैक्सन लाइटली फ्रिक्स्ड हिज क्लोथ्स। तो मैकलेरी साहब ने अपने आर्म्स जो है ना अपने शोल्डर लेवल पर उठा लिया, और जैक्सन ने उनको जो है ना उनके कपड़ों को फ्रिस्क किया, मतलब उनको थोड़ा वो किया, ऐसे उस तलाशी ले हाथ को फेर करके ना, हाथ जो है उसके ऊपर पास करके बॉडी पे कपड़े के ऊपर उसको चेक करते हैं, उसको फ्रिस्किंग कहते हैं, फ्रिस्क करना कहता है, ठीक है। तो उसने जैक्सन ने उनके क्लोथ्स को चेक किया। समटाइम्स हार्ड हियर सा, समथिंग हार्ड हियर सा, उसको कोई चीज़ हार्ड नजर आए, उनके कपड़ों में कहीं पे कोई चीज़ हार्ड नजर आए। तो उसने पूछा कि ये क्या चीज़ है। माई रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैकलेरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस। तो उनके पास एक स्पेक्टिकल केस था, एक केस था जिसके अंदर स्पेक्टिकल रखा हुआ, वो थोड़ा हार्ड था, इस केस जो है थोड़ा हार्ड होता। तो उन्होंने मैकलेरी साहब ने कहा ये मेरा रीडिंग ग्लास है, माई रीडिंग ग्लासेस। Jackson quickly reassured him, and bending down on the landing, thumb flicked the catches on the suitcase. जैक्सन ने उनको जो है रियश्योर किया कोई बात नहीं, फिर उसने जो है नीचे झुक करके जो है उनका सूटकेस ओपन किया, ठीक है। बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग, लैंडिंग मतलब उसको कहते हैं जहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जा कर के ख़त्म होती हैं, उनको जो है लैंडिंग कहते हैं, जो ग्राउंड होता है। तो उस पर झुक करके उनका सूटकेस ओपन किया। थंब फ्लिक का मतलब होता है थंब से जो है दबा करके ओपन करना। वहाँ पे एक थंब फ्लिक द कैचेज ऑन द सूटकेस, सूटकेस में कैचेज लगे होते हैं या हुक्स लगे होते हैं, उसको जो है इससे थंब से जो है उसको दबा करके ओपन करना। ही पिक्ड अप ईच एनवलप इन टर्न, वहाँ पे जितने एनवलप्स थे सूटकेस पे सब उसने पिकअप किया। केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलॉन्ग देयर सरफेसेस, तो जितने एनवलप्स थे जैक्सन ने उसके ऊपर जो अपने हाथ पास करके जो है उसको चेक किया। एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, यानी उसको सेटिस्फैक्शन हो गया कि इसके अंदर कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कोई पोटेंशियल वेपन नहीं है। ही रिफर्ड कर्सरली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रेट, उनके बाद जो बाइबल थे यानी होली रेट, उसको जो है ना उसके कुछ पेजेस को जो है उसने कर्सरली मीन्स एट अ ग्लांस या क्विकली उसको जो है ना रिफल किया, यानी उसको उलट करके देखा। उनके बाद जो बाइबल थी उसके पेजेस को उलट करके उन्होंने कर्सरली देखा।
एंड वेगली शुक द चर्च टाइम्स। उनके पास जो न्यूज़पेपर था चर्च टाइम्स, उसको जो है वेगली शुक, उसको जो है वेगली जो है शेक किया, मैं मीन्स केयरलेसली उसको शेक किया। ऑल राइट सो फार, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैकलेरी सूटकेस वॉज पजलिंग हिम सोरली। पजलिंग का मतलब बहुत कंफ्यूजिंग, सोरली मीन्स बैडली। तो उनके सूटकेस में एक चीज़ थी जो जैक्सन को बहुत ट्रबल कर रहे थे, वो काफ़ी परेशान करने वाले थे। कौन सी चीज़ थी? डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सा? तो जैक्सन ने मैकलेरी साहब को पूछा कि आप बता सकते हैं कि आप ये चीज़ क्यों लाए हैं? ही हेल्ड अप ए स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। तो जैक्सन ने जो है उसको पूछा कि उसके अंदर एक रबर रिंग थी, ठीक है, वो सेमी इन्फ्लेटेड थी। और जो है उसको देख करके रबर रिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस स्टोरी, ठीक है। उसके बाद एक रबर रिंग थी, वो सेमी इन्फ्लेटेड थी, और उसको उठा करके जैक्सन ने पूछा आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? तो अच्छा, सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू। वो जो सेमी इन्फ्लेटेड जो रबर रिंग थी वो इतनी बड़ी थी जैसे कि एक बच्चा हो 12 साल का, विद, ठीक है, 12 इंचेस नहीं, 12 साल का नहीं, एक बच्चा हो जिसकी वेस्ट करीब 12 इंच हो। ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर जो उसने स्ट्रगल किया हो, जैसे उसको पहनने की कोशिश की हो उस 12 साल के बच्चे ने, ठीक है। तो ये करीब जो रबर रिंग था करीब 12 इंच का था। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सा? तो उसने जैक्सन ने कमेंट किया, उसने पूछा क्या आप स्विम करने का प्रोग्राम है क्या आज? यानी ये क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको जो है स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह के रबर रिंग्स को, ताकि वो डूबने से ताकि वो डूबे नहीं, डूबने से बचने के लिए रबर रिंग्स ले करके स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो जैक्सन ने सोचा कि ये उन्होंने मजाक किया कि क्या आप इसको स्विमिंग के लिए ले जाना चाहते हैं? मैकलेरी इज हिदर टू एमिएबल डिमीनर। एमिएबल डिमीनर मीन्स फ्रेंडली मैनर। उनका जो फ्रेंडली मैनर था मैकलेरी साहब का अभी तक वो स्लाइटली रफल्ड, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अभी तक अच्छे मिजाज में थे, अच्छे मूड में थे मैकलेरी साहब, लेकिन उस जैक्सन का ये कमेंट सुन करके जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। बाय हिज टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री। प्लेजेंट्री मीन्स माइल्ड जोक, मतलब हल्का मजाक। तो जैक्सन की हल्के मजाक से जो है ना उनका जो अभी तक का जो एमिएबल डिमीनर था, फ्रेंडली मैनर था, वो थोड़ा रफल्ड हो गया, डिस्टर्ब हो गया। एंड ही आंसर्ड जैक्सन सम वाट सावरली। तो उसने जैक्सन को बहुत ही सावरली जवाब दिया, बहुत बिटरली जवाब दिया। उन्होंने कहा इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम जानना ही चाहते हो, आई सफ़र फ्राम हेमोराइड्स। हेमोराइड्स मीन्स पाइल्स और बवासीर। एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो मतलब कहने का कि उन्होंने थोड़ा सख्ती से जवाब दिया मैकलेरी साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर तुम जानना ही चाहते हो ना तो मैं आपको बताऊं, ये चीज़ जो है ना कि मैं जो है वो हेमोराइड्स मुझे हुआ है, हेमोराइड्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है। और जब मैं थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ जो है ना, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जो पाइल्स जो लोग को होता है ना बैठने पर जो है ना उनको जो है इस तरह के रिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू। ठीक है, तो जैक्सन ने उसके बाद सॉरी कह दिया कि मेरा मतलब ये नहीं था। ओके, तो माय स्टूडेंट्स, टुडे अप टू हियर ओनली, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।